अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 54। नेक्स्ट टॉपिक आज हम अपना स्टार्ट करेंगे डेट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल हमने पढ़ लिया, सेल की हिस्ट्री पढ़ ली हमने और सेल थ्योरी पढ़ी। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोपी पे हम आए और आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल आपको मैंने पहले बता दिया था, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर लिविंग थिंग। Structure of cell, you know that there are two basic type of cell, prokaryotic and eukaryotic. All bacteria are prokaryotes. Yeast and euglena are example of unicellular eukaryotes. Plant and animals are example of multicellular eukaryotes. Eukaryotic cell are more complex than the prokaryotic cell. In the following paragraphs, we will study the structure present in the cell and their functions. ऑन द बेसिस ऑफ सेल बेटे हमने ऑर्गेनिज्म को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, सेल की बेसिस पे एक है प्रोकैरियोट्स और एक है यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आपके पास तमाम के तमाम जो हैं बैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट में आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं ये यूकैरियोट्स में आते हैं। इसके अलावा जो यीस्ट और यूग्लिना है बेटे ये भी यूकैरियोट्स में आते हैं। यूकैरियोट्स को भी आगे, एक तो प्रोकैरियोट्स है ना, वो तो है ही सेपरेट, हमने ग्रुप रख दिया जिसमें सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। लेकिन यूकैरियोट्स जो है इसको फिर हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और एक है मल्टी सेलुलर। यूनि मीन वन, जिनके अंदर ओनली वन सेल है, दैट इज यीस्ट एंड यूग्लिना। ठीक है, दूसरी केस में जब हम आते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में तो वहाँ पे बेटे प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। तो एनिमल एंड प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। अब हमने क्या करना है कि हमने सेल का पूरा स्ट्रक्चर, कि सेल जो है, सेल क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो हम डिटेल से जो है आज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ सेल वॉल। Cell wall is more less or solid layer surrounding a cell. It is found in bacteria, fungi, plant and algae. When a cell wall is removed using cell wall degrading enzyme, the remaining component of the cell are called protoplast. The primary wall is the actual cell wall of cell. It is composed of polysaccharide, that is cellulose and hemicellulose and pectin. The cellulose microfibrils are aligned at all angles and are held together by hydrogen bonds. Many proteins are present in primary wall. The middle lamella is a gelatinous layer that separate and hold primary of the neighboring cell. It is laid first from the cell plate during cytokinesis and the primary wall is then expanded inside the middle lamella. It contains magnesium and calcium pectate, salt of pectic acid. In some plant, after maturation, a second wall is made between protoplast and primary wall. Secondary wall contain lignin, cellulose and hemicellulose. Due to presence of lignin, secondary wall is more rigid than the primary wall. Plasmodesmata. There are small channels that directly connect the cytoplasm to neighboring plant cell to each other. Plasmodesmata penetrate both primary and secondary cell wall. They allow certain molecules to pass directly from one cell to another. So they are important in cellular communication. Plasmodesmata are formed during cell division when parts of endoplasmic reticulum of the parent cell get trapped in new cell wall. Cell walls have a number of functions. They provide rigidity to the cell for structural and functional support, maintain cell shape and direction of cell growth, and ultimately the architecture of the plant. The cell wall also prevent expansion when water enters the cell. Cell wall protect against pathogens and the environment and are a store of carbohydrate for plants. The cell wall of algae contains cellulose and variety of glycoproteins. The cell wall of fungi is composed of chitin, the same carbohydrate that gives strength to the exoskeleton of insect. The cell wall of prokaryotes, bacteria and cyanobacteria is composed of peptidoglycan, that is singular large polymer of amino acid and sugar. The cell wall of archaebacteria is composed of different polysaccharide and protein with no peptidoglycan.
मैंने जो अभी पूरा टॉपिक जो है जिसको मैंने रीड आउट किया बेटे, डैट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज़ है, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर पढ़ा रही हूँ मैं आपको? सेल वॉल का। सेल हमने पढ़ा था सेल, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल का स्ट्रक्चर पढ़े हैं। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, ठीक है। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर है बेटे, उसको क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। ये चीज़, ये मेन डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल का भी। प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है? वो है सेल मेम्ब्रेन। इन केस जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के बाद आएगी, यानी कि प्लांट में दोनों प्रेजेंट है, सेल वॉल ही प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है। तो ये जो हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं, सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन केस ऑफ प्लांट। एनिमल में सेल वॉल जो है वो क्या होती है बेटे? एब्सेंट होती है। सेल वॉल जो है मोर और लेस जो है, दिस इज सॉलिड इन स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसने सेल को सराउंड किया होता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट्स में, एल्गी में, तमाम के तमाम प्लांट्स में जो है सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है। जब हम सेल वॉल को रिमूव करें, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं उनको यूज़ करते हुए, वो एंजाइम जिनसे बेटे आप सेल वॉल को रिमूव कर सकते हो, उन एंजाइम को हम कहते हैं डीग्रेडिंग एंजाइम। ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज डीग्रेडिंग एंजाइम या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीग्रेडिंग एंजाइम। तो वहाँ पे आपने बताना है कि जब हम सेल वॉल को रिमूव करते हैं तो हम लोग को कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? डीग्रेडिंग एंजाइम, ठीक है। तो जब आप सेल वॉल को रिमूव कर लेंगे, जब हम एंजाइम की हेल्प से, डिग्रेडिंग एंजाइम से, जो रिमेनिंग कंपोनेंट बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। की बात आपने याद रखनी है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। सेल वॉल को जब रिमूव किया जाता है यूजिंग डीग्रेडिंग एंजाइम, तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स बचते हैं सेल के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब हम आते हैं सेल का, ये तो सेल वॉल हमने पढ़ ली, मेन चीज़ के सेल वॉल क्या चीज़ है। सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है किसकी? सेल की। अब हम आ रहे हैं उसका पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो बेटे सेल वॉल है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। पहले कौन सी आपकी आएगी? मिडल लैमेला है, फिर आपकी प्राइमरी है, फिर आपकी सेकेंडरी है। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी वॉल जो है ये क्या चीज़ है? एक्चुअल वॉल ऑफ द सेल। सबसे पहली लेयर, प्राइमरी लेयर की बात हो रही है, वो कौन सी है? उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वॉल। और ये एक्चुअल सेल वॉल है जो कि आपको सबसे बाहर जो है वो नजर आएगी। इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड्स की बनी हुई है। उसमें 2 चीजें हैं, पॉलीसेकेराइड में 2 चीजें हैं, कौन कौन सी? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। मैंने आपको क्या बताया कि सेल वॉल जो है इट कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड, दैट इज पॉलीसेकेराइड में अब क्या चीजें हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है। सेलुलोज के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है बेटे? सेलुलोज में माइक्रोफाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाइंड, यानी कि उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो हर एंगल से जो है माइक्रोफाइबर्स जो हैं प्रेजेंट हैं, और ये सब के सब जो हैं इकट्ठे जो है एक ही मतलब जुड़े होते हैं। कौन से? ये जो मैंने आपको अभी बताए हैं माइक्रो, हम लोग जो बात करें माइक्रो फाइबर्स की, और डिफरेंट जो माइक्रो फाइबर्स हैं ये तमाम के तमाम एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है ये ज्वाइन होते हैं। इसके अलावा प्राइमरी वॉल में बहुत सारे प्रोटीन भी जो है वो शामिल होते हैं। अब हमने क्या कर लिया, मैंने आपको बता दिया कि सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। आप उसकी मतलब स्ट्रक्चर लिख रहे हो सेल वॉल का। प्राइमरी लेयर थी, मिडल लैमिला थी, सेकेंडरी वॉल थी। अगर आपका स्ट्रक्चर आता है, राइट डाउन द सेल स्ट्रक्चर या कंपोजिशन ऑफ जो है सेल वॉल आएगी, तो आप ये चीज लिखोगे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। पहली लेयर हमने पढ़ ली है मिडल लैमिला। मिडल लैमिला का मैंने क्या बताया है कि ट्रू आउटर लेयर जो है सेल वॉल की, डेट इज नोन एज प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में 3 चीजें आपके पास आएंगी, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और मैंने क्या बताया? पैक्टिन बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे माइक्रो जो है फिलामेंट जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये जो तमाम के तमाम जो माइक्रोफाइब्रल्स हैं, सॉरी माइक्रोफिलामेंट्स नहीं, माइक्रोफाइब्रल्स जो हैं ये तमाम के तमाम जो हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि जो प्राइमरी बेटे वॉल है उसके अंदर प्रोटीन भी शामिल है। नेक्स्ट आप हेडिंग दे सकते हैं मिडल लैमिला, यानी कि जो सेकंड लेयर आती है। फर्स्ट लेयर की थी हमारे पास आ गई थी प्राइमरी लैमिला, अब हमारे पास सेकेंडरी लेयर आ रही है, डेट इज नोन एज मिडल लैमिला। मिडल लैमिला जो है वो है जिलेटिनियस लेयर। इसका मेन फंक्शन क्या है कि सेपरेट करती है प्राइमरी वॉल को दूसरे सेल्स से, ठीक है। मिडल में आ गई ना, तो इसने प्राइमरी सेल को बाकी सेल से क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, ठीक है। ये क्या करती है, सबसे पहले ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, हमने साइटोकाइनेसिस आपने फर्स्ट ईयर में जब माइटोसिस पढ़ा था तो बेटे वहाँ पे आपने साइटोकाइनेसिस पढ़ा था। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस जब होता है तो मिडल लैमिला जो है इट इज फॉर्म ड्यूरिंग सेल प्लेट फॉर्मेशन। जब सेल प्लेट बनती है, आपको याद होगा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा था। साइटोकाइनेसिस में क्या हो रही थी, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा था, तो वहां पे सेल प्लेट बनती थी और सेल प्लेट से जो है बेटे वो क्या बनता था, मिडल लैमिला बनता था, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल जो है एक्सपैंड होगी और उससे सारी प्राइमरी लेयर भी बनती है और प्राइमरी लेयर की फिर आगे फर्दर एक्सपेंशन होती है और क्या बनता है आपके पास, मिडल लैमिला बनता है। मिडल लैमिला कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग्स, कौन सी हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है आपके पास कैल्शियम पैक्टेट्स। पैक्टेट्स क्या है, पैक्टेट्स साल्ट ऑफ पैक्टिक एसिड, ठीक है। पैक्टेट्स किसको कहते हैं, साल्ट ऑफ पैक्टिक एसिड को कहते हैं। फिर आगे फर्दर हमने अब क्या पढ़ ली, मिडल लैमिला हमारी खत्म होगी। मिडल लैमिला को मैंने क्या बताया कि ये मिडल में प्रेजेंट है, मिडल नाम ही मिडल है, यानी कि प्राइमरी वॉल से इनवर्ड प्रेजेंट होगी और ये बाकी सेल के पार्ट्स को प्राइमरी लेयर से जो है सेपरेट करी है। ये जिलेटिनियस लेयर है, वो जैसे हमने वो पढ़ी थी वो समवट सॉलिड लेयर थी। ये क्या थी, ये जेली लाइक जिलेटिनियस लेयर थी जो कि ड्यूरिंग सेल वॉट जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है तो सेल प्लेट जब बनती है उस टाइम जो है इट इज फॉर्म फ्रॉम द सेल प्लेट, ठीक है। सेल प्लेट से ही प्राइमरी वॉल बनती है और वो उसकी एक्सपेंशन से मिडल लैमिला बनती है। मिडल लैमिला कंटेन टू मेन थिंग्स, एक है मैग्नीशियम है और एक है कैल्शियम पैक्टेट्स। व्हाट आर पैक्टेट्स, आपने बताना है, पैक्टेट्स है साल्ट ऑफ पैक्टिक एसिड। फिर हम आते हैं अपनी थर्ड लेयर की तरफ। व्हाट इज थर्ड लेयर, थर्ड लेयर आपकी आती है सेकेंडरी वॉल इन सम प्लांट्स, ठीक है, आफ्टर मिचोरेशन। एक तो मतलब अभी प्लांट जो है वो सीडलिंग स्टेज में है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ, ठीक है। तो जब उसका मिच्योरिटी का यानी कि प्लांट मिच्योर हो जाता है तो आफ्टर मिच्योर जो है एक और लेयर डेवलप होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल इज मेड, ये कहाँ बनेगी, बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्राइमरी वॉल, यानी कि प्राइमरी वॉल और प्रोटोप्लास्ट के दरमियान में जो है ये आपकी क्या बनेगी, सेकेंडरी वॉल बनेगी। सेकेंडरी वॉल कंटेन, इसके अंदर होता क्या है, इट कंटेन लैग्निन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज हमने प्राइमरी लेयर में पढ़ा था। क्योंकि इसके अंदर बेटे लैग्निन प्रेजेंट होता है तो लैग्निन जो है वो ज़्यादा हार्ड होता है, तो सेकेंडरी वॉल जो है वो क्या होगी, इट इज़ मोर रिजिड देन प्राइमरी वॉल। हमने क्या पढ़ लिया, अब हमने सेल वॉल की तीन मेन लेयर्स जो हैं, प्राइमरी वॉल, मिडल लैमिला और सेकेंडरी वॉल जो है वो हमने डिटेल से पढ़ ली। ये कैसी हैं, इनका स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। हमने एक जो थी रिजिड थी, एक जेलेटिनियस थी और एक समवट सॉलिड थी, ये तमाम की तमाम पढ़ी। इनके अंदर कौन कौन से जो हैं मटेरियल्स थे वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हम जो चीज़ पढ़े हैं डैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अगर प्लूरल होगा, अगर सिंगुलर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्मा कहेंगे। ये क्या चीज़ें हैं बेटे, दीज आर स्मॉल चैनल्स। ये क्या है, स्मॉल चैनल्स हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल के साथ, ठीक है। साइटोप्लाज्म को नेबरिंग जो प्लांट सेल हैं उनके साथ जो है ये कनेक्ट करते हैं, दीज आर स्मॉल चैनल्स, ठीक है। और प्लाज्मोडेस्माटा जो है बेटे ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, ये प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल के अंदर ही प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर ही स्ट्रक्चर है, लेकिन दीज आर लाइक चैनल्स, ठीक है। चैनल्स क्या होते हैं, रास्ते, गुजरगाहें छोटी छोटी जो बनी होती हैं जहाँ से मटेरियल जो है वो इन एंड आउट होगा, छोटे छोटे रास्ते बने होते हैं, इनको हम लोग चैनल्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो हैं ये चैनल्स हैं, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म जो है प्लांट सेल के उनको डिफरेंट से जो है ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा बेटे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में जो है प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स को, इनकी जो
पास होना है, एक सेल से दूसरे सेल में जो जाना है उसको जो है ये इन्हांस करते हैं, अलाउ करते हैं। क्या करते हैं, इनका चैनल्स है ना, चैनल से क्या होगा, कोई ना कोई मटेरियल पास होगा। तो ये इनका मेन प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या हो गया कि ये मॉलिक्यूल्स को पास करवाते हैं। दे पास डायरेक्टली फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कौन जा रहा है, डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं। तो इनका ये दे आर इम्पॉर्टेंट इन सेलुलर कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आगे है कि प्लाज्मोडेस्माटा कब फॉर्म होते हैं। हमने पहले पढ़ा था बिडल एमिला जो है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस जो है वो फॉर्म होती है। प्लाज्मोडेस्माटा भी बेटे जब सेल डिवीजन होती है तभी ये फॉर्म होते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बन रही होती है, वो ट्रैप हो जाती है न्यू सेल वॉल, तो साथ ही प्लाज्मोडेस्माटा भी जो है वो फॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब हमने ये क्या पढ़ लिया, ये हमने सेल वॉल का बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब हम चीज पढ़े हैं सेल वॉल के फंक्शंस। आपका क्वेश्चन अगर आया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, तो आप वहां पे ये लिखोगे जो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे अगर नोट आता है तो यहाँ पे आप हेडिंग भी दे सकते हैं, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, हैव अ नंबर ऑफ फंक्शन। पहली चीज़ क्या है कि दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को क्या देते हैं, रिजिडिटी देते हैं फॉर स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगला आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं और जो है डायरेक्ट सेल ग्रोथ में जो है इन्वॉल्व होते हैं। और क्या करते हैं, दे आर हम इसको मतलब सिंपल वर्डिंग में ये भी कह सकते हैं, दे आर आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट। कैसे, क्योंकि इन्होंने प्लांट को शेप दी है ना, शेप दी है, स्ट्रक्चर दिया है, सेल शेप को मेंटेन किया, तो इसलिए इनको हम लोग आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट भी कहते हैं। सेल वॉल जो है ये एक्सपेंशन को प्रिवेंट करते हैं और जब वाटर जो है सेल के अंदर एंटर होता है। सेल वॉल जो है डिफरेंट पैथोजन से जो है प्लांट को महफूज रखते हैं। पैथोजन्स क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काज कर रहे होते हैं, तो सेल वॉल जो है एक लेयर बना देती है जिसकी वजह से वो प्लांट के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो इन शॉर्ट क्या हो गया कि वो उनको जो है प्लांट्स को अगेंस्ट पैथोजन जो है वो सेफ रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरा मेन फंक्शन इसका सेल वॉल का क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्टोर कर रहे हैं फॉर द प्लांट्स। अब हमने क्या पढ़ लिया बेटे, मैंने आपको सेल वॉल के फंक्शन पढ़ा दिए। आपकी मर्जी आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में राइट कर लो, आपकी मर्जी आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में रख लो। पहले हमने क्या पढ़वाया था, मेन फंक्शन क्या था कि दे गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट। दूसरा क्या था, दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट। फिर आपका आता है दे प्रोवाइड रिजिडिटी। फिर क्या है, दे मेंटेन सेल शेप। They are directly involved in cell growth or they are known as architecture of plant. The cell wall also prevent expansion when water enter the cell. फिर क्या आता है, cell wall protect against pathogen and the environment और cell wall store carbohydrate for the plants। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने सेल वॉल के फंक्शन पढ़ लिए। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आते हैं तो आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है, किस चीज़ का डिफरेंस ऑफ डिफरेंट सेल वॉल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना, हमने अभी पढ़े, हमने पढ़ा एल्गी पढ़ा, हमने फंजाई पढ़े, हमने प्रोकैरियोट्स पढ़े, फिर मैंने आपको बैक्टीरिया भी बताए। तो इन सब के सेल वॉल में एक डिफरेंस है। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गी सेल वॉल एंड फंजाई सेल वॉल, या आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकता है कि एल्गी का सेल वॉल जो है वो किसका बना हुआ है या फंजाई का किसका बना हुआ है। तो ये सब कुछ आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं एल्गी के सेल वॉल की। जो एल्गी का सेल वॉल है, इट कंसिस्ट ऑफ या इट कंटेन सेलुलोज एंड वैरायटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। आपको ये बात याद होनी चाहिए, एल्गी का जो सेल वॉल है बेटे वो सेलुलोज से और ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। फिर हमने आगे आते हैं सेल वॉल ऑफ फंजाई। ये तो आप 9th 10th में बल्कि 8th में भी पढ़ के आए हो कि फंजाई का सेल वॉल जो है ये काइटिन का बना होता है, ठीक है। और काइटिन जो है ये एक्सोस्केलेटन भी होता है, किसका, इंसेक्ट का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना होता है। ये उसको एक हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में कौन कौन सी दो चीजें आती हैं प्रोकैरियोट्स में, एक आते हैं बैक्टीरिया और एक आते हैं साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल जो है इट कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और पेप्टिडोग्लाइकन क्या होते हैं आपको पता है, पता चल रहा है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। यानी कि ये पेप्टिडोग्लाइकन में क्या चीज़ होगी, अमाइनो एसिड एंड शुगर, ठीक है।
तो दे आर कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन दैट इज अ सिंगल लार्ज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड एंड शुगर। लास्ट में आपके आता है सेल वॉल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन। क्या हो गया? पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो क्या है? एब्सेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने डिफरेंस याद रखने हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, ये काइटिन का बना हुआ है, ये पेप्टिडोग्लाइकन, और ये क्या है? पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन। हमने अपना सेल वॉल जो है वो आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके एंड पे अगर आप लोग देखो तो ये आपकी इधर यहाँ पे बुक पे डायग्राम है बेटे, दिस इज कंपोजिशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ये डायग्राम आपकी है, बहुत इजी है इसलिए इसको मैंने ड्रॉ नहीं किया। अगर आप इसको गौर करो, दिस इज सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ बताई हुई आपको प्राइमरी सेल वॉल की। यहाँ पे क्या चीज़ है? आपके ऊपर जो है सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या चीज़ आ गई? ये पूरी की पूरी प्राइमरी सेल वॉल है, ऊपर मिडल लैमेला, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आपको ये जो पर्पल कलर में छोटे छोटे से, मैं और इनलार्ज करती हूँ ताकि आपको मजीद क्लैरिटी बेटे हो। ये जो पर्पल कलर में बीड लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर पैक्टिन। क्या चीज़ है? पैक्टिन है। और ये जो क्रॉस लिंकेज है येलो कलर के इसके ऊपर ये जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर ग्लाइकन। और मैंने आपको भी एक और चीज़ बताई थी, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स प्रेजेंट है। तो ये बेटे जो ब्लू कलर में आपको बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, दीज आर माइक्रोफाइब्रल्स। क्या चीज़ है? ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रल्स हैं, ठीक है। ये एक जर्नल स्ट्रक्चर आपको बताया, सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या था? हम दोबारा इसको बताते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर में क्या था कि 3 लेयर्स थी सिर्फ आपके पास। मिडल, पहले आउटर मोस्ट क्या थी? प्राइमरी थी, फिर मिडल थी, और उसके अंदर क्या आपके पास आई थी? सेकेंडरी वॉल आई थी। और इसके दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट थी? आपके पास पैक्टिन था और सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की प्राइमरी वॉल की बात हो रही है ना, तो ये 3 चीज़ों की मिलके बनी हुई थी। और यहाँ पे क्या थे? माइक्रोफाइबर भी जो है वो प्रेजेंट थे, जिनके अंदर क्या था? ये माइक्रोफाइबर्स है ना सारे, ये भी ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये तमाम के तमाम सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? और फिर हमने प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, और तीनों वॉल्स का मैंने आपको बताया था कि तीनों वॉल्स जो हैं वो किस किस मटेरियल की जो हैं बनी हुई हैं। उसके बाद मैंने आपको बेटे एक और चीज़ पढ़ाई थी, डेट इज़ नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या था? प्लाज्मोडेस्माटा चैनल्स थे जो के मटेरियल्स को अलाउ कर रहे थे कि वो वहाँ से डायरेक्टली जो है एक सेल से दूसरे सेल में पास ऑन हो जाए। यहाँ पे अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो बेटे आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है प्लाज्मोडेस्माटा का। ये सेल है, ठीक है, नेबरिंग सेल है। सपोज ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। सेल के दरमियान में एक रास्ता बना हुआ है, ये जो येलो कलर का आपको पाथ नजर आ रहा है, दीज आर चैनल्स। ये क्या है? चैनल्स हैं जो जिससे मटेरियल जो हैं वो इन एंड इधर को जा रहा है, कोई इधर मटेरियल जा रहे हैं, यानी कि नेबरिंग सेल में मटेरियल जो है वो मूव कर रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर चैनल विच अलाउ मॉलिक्यूल्स टू पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर। ये चैनल्स जो आपको नजर आ रहे हैं, दीज चैनल्स आर नॉन एज प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये आपको सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया है। दरमियान में क्या चीज़ है? वैक्यूलर डिफरेंट सेल्स हैं, 1 2 3 4 डिफरेंट सेल्स हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आपको सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी वॉल है। और ये ब्राउन वाली जो है ये क्या है? मिडल लैमेला है। अगर आप देखो ये 2 सेल्स के दरमियान में, अगर इसको मैं और इनलार्ज करूँ अगर, तो यहाँ पे आपको ये एक चैनल नज़र आ रहा है, यानी कि इस सेल से इस सेल में मटेरियल आ सकता है। अब इस सेल से इस सेल में मटेरियल कैसे आएगा? इस रास्ते से आएगा। ये जो येलो कलर का आपको रास्ता दिखाया हुआ है, चैनल दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी ये चैनल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये चैनल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये चैनल प्रेजेंट है। तो ये जो चैनल्स, ये जो रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और इन चैनल से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो हैं वो यहाँ से इधर या इधर से उधर हर जगह पे जो है फ्रीली जो है डिफरेंट सेल्स में मूव कर सकते हैं। ये क्या चीज़ हमने देख ली? ये हमने देख लिया प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर हो गया? यहाँ पे बेटे आपके इस के साथ साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये नोटिस भी लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हुए हैं, ये भी हम पढ़ते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा हैव caused debate among scientists regarding cell theory. Some scientists suggest that cells of higher plants are not really cells since they are not physically separated or independent from another. प्लाज्मोडेस्माटा जो है इसने एक मतलब इशू क्रिएट कर दिया है साइंटिस्ट के, बहुत सारे साइंटिस्ट के दरमियान में रिगार्डिंग सेल थ्योरी के। जो सेल हैं हायर एनिमल्स के, दे आर नॉट रियली सेल्स, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से फिजिकली हम एक दूसरे से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक डिबेट बन चुकी है अभी तक कि आया ये सेल हैं कि नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका आता है द ग्रुप ऑफ एल्गी कार्ल डाई आइटम सिंथेसाइड देयर सेल वॉल फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड द एसिड इज पॉलीमराइज्ड इनसाइड सेल देन the wall is extruded to protect the cell. The synthesis of silica cell wall requires less energy. That is why there are high growth rate in diatoms. एक एलजी का ग्रुप है बेटे, उस ग्रुप को कहते हैं डाई एटम्स. एलजी आगे, एलजी बहुत ज़्यादा है, एलजी के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, ठीक है. तो एलजी का एक ग्रुप है डाई एटम्स, ठीक है. उनकी बात आपको बताई हुई कि डाई एटम एलजी जो है वो अपनी सिंथेसाइज कर सकती है, अपनी सेल वॉल खुद बना सकती है फ्रॉम एक एसिड है, उस एसिड का नाम है सैलिसिलिक एसिड, SILICIC. सैलिसिलिक एसिड जो है उससे वो लोग अपनी सेल वॉल जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं. और ये एसिड जो है ये इनसाइड सेल इसकी पॉलीमराइजेशन होती है और क्या होता है कि उस वॉल जो है, फिर सेल वॉल जो है बनती है जो कि डिफरेंट सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है. और ये जो सिंथेसिस है पूरी सैलिसिलिक एसिड से जो सेल वॉल बनने का पूरा जो प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं, इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, ठीक है. और क्योंकि एनर्जी लेस रिक्वायर्ड होती है, यही वजह है कि जो इनका डाई आइटम्स, यानी कि जो डाई आइटम्स क्या था, एलजी थी ना, ग्रुप ऑफ एलजी, तो इनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है. बहुत तेज़ी से ये जो है ग्रो करते हैं. क्लियर हो गया. अब ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रुप है एलजी का, जो डाई आइटम्स का है, कि वो व्हाट इज़ अ मेन नोटिसेबल फीचर, ठीक है. किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि डाई आइटम एलजी जो है उनका मेन नोटिसेबल फीचर क्या था, कि वो अपनी सेल वॉल को खुद सिंथेसाइज कर सकते थे. क्लियर हो गया बेटे. हमने सेल वॉल जो है वो कंप्लीट कर लिया. आपको मैंने क्या बताया, सेल वॉल का हमने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा, स्ट्रक्चर में 3 लेयर्स पढ़ी, तीनों लेयर्स किस किस मटेरियल की बनी होती थी वो हमने पढ़ा. फिर मैंने आपको प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ाया, उसकी डायग्राम भी हमने की. उसके बाद हमने क्या किया, हमने सेल वॉल के फंक्शंस जो हैं, मेन उसके जो फंक्शंस हैं वो किए. और इन द एंड हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल के जो मेकिंग है, किस किस मटेरियल से बनी हुई है, उसमें हमने डिफरेंस देखा. एलजी, फंजाई, प्रोकैरियोट्स और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको जो है बताया. आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है डिटेल से पढ़ाऊंगी. कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो. और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ. कोई प्रॉब्लम होता है बेटे, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. अल्लाह हाफिज़. फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे.